Good morning to one and all. Today we will do question number 8 from your chapter number 7, cash book and its types. This is the question relating to three columnar cash book in which the columns will be of discount, cash and bank. Let us go through with the specimen of this. Now, first of all, you have studied the simple cash book, then two columnar, and now last topic for the chapter is three columnar. I am talking about cash book. Fine. Date, receipts, receipt number, ledger folio, discount allowed, cash and bank. तीनों एक साथ आते हैं जहां पर उसे हम थ्री कॉलमनर फॉर्मेट कहते हैं. ऑन द credit side, date, payments, voucher number, ledger folio, discount received, cash and bank. Fine. So individually हमने सब कुछ सीखा हुआ है. Now all together is the format three columnar cash book. Let us start up with practical question. Hello students, question number 8 we are going to start with. From on your page number 186, from the following transactions prepare three columnar cash book of Namrata 2015 August 1st. Opening cash balances of 7,000 and opening bank balances of 6,000. Okay, so like this way, this is your heading. Question number 8, three columnar cash book of Namrata for August 2015. Now I have drawn this three columnar format in horizontal way so that I can get the enough space, and it is advisable for you people also to do the same. So now like this way I have done, this is your debit side and this is your credit side. This is the main bifurcation line. I have drawn a darkened one so that you can come to know date, receipt, receipt number, ledger folio, discount allowed, cash and bank. Like this way all the three columns are together. That's why the name is three columnar cash book. On the credit side, date, payments, voucher number, ledger folio, discount received, cash and bank, and even you are supposed to write debit and credit. Now on date 1/2015 August, date is 1st. आपको दोनों balances दिए हुए हैं. You are supposed to write to balance brought forward. Okay, how much is the balance? Your balance is 7,000 in the column of cash. Fine. So cash में 7,000 and in the bank column 6,000 it is given to you. Okay, so discount में कुछ नहीं, dash. Now moving further on to page number 187, transaction dated 3. Cash purchase 6,000, cash sales 7,000. Now you have purchased through cash. So here 2015 August 3, what you are supposed to write? By purchase account. कैश के थ्रू पेमेंट्स हुए हैं. सो इन द कॉलम ऑफ कैश कितने का आपने परचेसिंग किया है? ऑफ 6,000. तो बैंक में डैश आएगा. नेक्स्ट सेम डेट, डेट 3 को आपने सेल्स किया है. सेल्स करने से पैसा आता है टू सेल्स अकाउंट. ये आपका कैश सेल्स है. सो 7,000 रुपीज का आपने क्या किया है? सेलिंग किया है. Okay, this was as simple as what we have done in our previous questions. Now transaction 5, rupees 3,000 is deposited in the bank. Now again this is your contra entry. Cash goes out and bank is the receiver. Now as cash goes out, हमें as per the rule क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा. तो हम क्या करेंगे? 3,000 से कैश के कॉलम को क्रेडिट करेंगे. डेट 5 कैश का कॉलम है. यहां पे क्या लिखेंगे आप? बाय बैंक अकाउंट. थ्रू जर्नल एंट्री ऑल्सो आई हैव टॉट यू अर्लियर. नाउ डायरेक्टली हमें आ जाना चाहिए. बैंक हमारी रिसीवर है, इसके लिए
डेबिट करेंगे किसके कॉलम को, बैंक के कॉलम को, सेम 3000 से, ओके। एंड लेजर फोलियो में क्या आएगा, कॉन्ट्रा डेट इज 5 टू कैश अकाउंट। ठीक है, आ रहा है समझ में बेटा। नाउ अगेन मूविंग फर्दर ऑन ट्रांजेक्शन 6, as more funds are required in the business, a loan of 5000 is taken from प्रभु bearing 8% interest। हमने क्या किया है, लोन परचेज किया, सॉरी लोन लिया है, किससे लिया है, प्रभु से लिया है, कितने का, 5000 का। अगर हम लोन ले रहे हैं तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश कम्स यानी वो हम कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और डेट है आपका 6, क्या आएगा, 8% लोन अकाउंट। किसके कॉलम में लिखेंगे आप, कैश के कॉलम में। कितने का लोन आपने लिया है, 5000 का, ओके। सो 5000 इन द कॉलम ऑफ कैश। मूविंग फर्दर ऑन डेट 8, व्हाट इट इज, goods of 3000 sold to Mansi at 10% CD. Mansi issued a check of the necessary amount which is deposited in the बैंक। हमने क्या किया है, मानसी को गुड्स बेचे हैं 3000 के 10% CD, और मानसी ने सामने हमें क्या किया है, चेक के थ्रू पेमेंट किया है, एंड द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगेन हम सेल्स कर रहे हैं, हमें रिसिप्ट्स साइड रिकॉर्ड करना होगा। योर डेट इज 8, क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। फाइन, 3000 के गुड्स आप 10% CD पे दे रहे हैं। CD is calculated and even recorded. Okay, if you want, I'll show you once how it works. कितना है, 3000 into 10%। ये 10% जो है ये हमारा CD है 300. This 300 is to be recorded over here. हम उसको अलाउ कर रहे हैं, okay, and minus equals to 2700 rupees जो है that will appear in the column of bank just because मानसी ने हमें चेक दिया है, सो हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, सो डेबिट साइड, ओके। नाउ ट्रांजेक्शन 10, गुड्स ऑफ 7000 परचेज्ड फ्रॉम द्विज कर देना, एंड 50% अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय कैश। हमने परचेज किया है द्विज से 7000 के गुड्स, एंड हमने पेमेंट कितना किया है, ओनली पेमेंट वी हैव डन 50% एंड दैट ऑल्सो थ्रू कैश, ओके। सो हम परचेज कर रहे हैं, इट विल कम ऑन दी क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट, ओके। बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे, कैश के कॉलम में 7000 नहीं आएगा, 3500, जस्ट बिकॉज हमने अभी तक हाफ ऑफ द पेमेंट किया है, ओके। मूविंग फर्दर ऑन डेट 12, सैलरी 3000, वेजेस 500, स्टेशनरी 200 आर पेड बाय चेक। हम ये सारा परचेज कर रहे हैं और उसका पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं। सो each and every item will come up on the credit side, that is on your purchase side. Date is 12 by salary account. I'm writing all together first. By wages account, and last by what another item is there? It is stationery by stationery account, okay. Each and everything has been paid by check. इसके लिए हम सब कुछ इसका रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज बैंक कॉलम। फाइन, नाउ सैलरी में 3000, wages are of 500 and stationery is of 200, okay. Now coming on to 14th date, commission of 1000, brokerage of 500 received by cash। दोनों हम रिसीव कर रहे हैं, so it will come up on the
रिसिप्ट साइड इस बाजू हमें इसका रिकॉर्डिंग करना होगा. नाउ योर डेट इज 14. What all you have received to commission account, to brokerage account, and you have received through cash. So in the column of cash, 1000 and 500. Fine. Now moving further on transaction dated 16. Bank credited interest 100 on balance in Namrata's bank. बैंक ने हमें क्या किया है, क्रेडिट किया है. दैट मीन्स वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट. कैसे पता चलेगा बैंक ने हमें क्रेडिट किया है तो हम रिसीव कर रहे हैं? बिकॉज जब बैंक अपनी साइड से क्रेडिट करती है तो हमें बैंक दे रही है, और बैंक जब अपनी साइड से डेबिट करती है तो दैट मीन्स हमारे से बैंक ने कोई भी चार्जेस या कमीशन लिया है. ओके. नाउ ऑन डेट 16 टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट. ओके. नाउ कौन से कॉलम में आएगा? बैंक के कॉलम में ₹100. फाइन. बैंक इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिट कर रही है तो हम डेबिट करेंगे, और बैंक अगर डेबिट कर रही है तो हम क्रेडिट करेंगे. ओके. नाउ अगेन ऑन टू द क्वेश्चन. डेट 17, ₹2000 withdrawn from the bank for the payment of electricity bill. Now this type of transaction you have studied previously as well. Electricity bill on date 17 we have not paid. We have just withdrawn from the bank for the payment of electricity bill. So as per the rule of personal, because bank is our personal account, bank becomes the giver and cash comes into the business. So cash comes in, so cash account debit and bank is the giver. So bank account को हमें क्या करना होगा? Credit करना होगा. Are you getting what I am saying, you people? Bank is the giver, bank balance reduces, cash is your real account. So debit what comes in. हमें कैश के कॉलम को क्या करना है? डेबिट करना है. कितने से डेबिट करना है? 2000 से. सो कैन यू सी डेबिट ओवर हियर, एंड कैश में क्या करेंगे? 2000 से डेबिट. लेजर फोलियो में क्या आएगा आपका? कॉन्ट्रा. डेट इज 17, कॉलम इज कैश, सो आप क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट. ओके. ऑन द अदर साइड, डेट 17, बैंक इज द गिवर. सो एज पर द रूल ऑफ पर्सनल, गिवर कब होता है? जब क्रेडिट होता है. तो आपको क्या करना है? बैंक के कॉलम को 2000 रुपीज से क्रेडिट करना है. लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा बाय कैश अकाउंट. कॉलम आपका बैंक का है, सो यू विल राइट कैश. ओके. मूविंग फर्दर ऑन डेट 20th, 1000 पेड for electricity bill and remaining 1000 is taken for personal use. Okay. Now this date 20 is directly connected with 17. ये दोनों का इंटरलिंक है. हमने 2000 विड्रॉ किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, पर उसमें से क्या हमने किया? 1000 रुपीज हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया. रेस्ट 1000 वी हैव टेकन फॉर दी पर्सनल यूज. जब भी पर्सनल यूज होता है तो वी राइट ड्रॉइंग्स. ओके. सो अभी हम क्या करेंगे? ऑन credit side, on payment side, because we are paying date 20 by electricity bill या expense account. अब हमने पेमेंट किया है and we are paying through cash. वो दिया हुआ नहीं है, पर हमने बैंक में से क्या विड्रॉ किया था? कैश विड्रॉ किया था. तो बट ऑब्वियस है कि अभी हम जो पेमेंट करेंगे वो कैश के थ्रू कर रहे हैं. नाउ वन मोर इज देयर, बाय drawings account. Why drawings? Because it is for personal use. जब भी पर्सनल यूज की बात होती है तब हम उसे क्या ट्रीट करते हैं? We treat it as our drawings. Moving further on date 22, goods of 5000 sold to Parth. He issued a check of necessary amount after deducting cash discount at 10%, which is immediately deposited in the bank. हमने क्या किया है? गुड्स बेचे हैं किसको? पार्थ को. और पार्थ ने हमें क्या किया है? चेक दिया है आफ्टर 10% ऑफ डिडक्शन.
हमने सेल्स किया है तो हमें पैसा मिलेगा। योर डेट इज 22 टू सेल्स अकाउंट। 5000 का 10% CD इज डिडक्टेड एज वेल एज रिकॉर्डेड। सो डिस्काउंट के कॉलम में कितना आएगा 500 एंड चेक है माइनस इक्वल्स टू जब आप करेंगे देन इट विल कम टू 4500। 5000 का 10% CD वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पर एंड रेस्ट आपको चेक मिला है विच इज डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। ओके, मूविंग फर्दर on date 25. Check issued by Parth is dishonored. This is also the entry which we have done earlier. The check which was issued by Parth to us is now dishonored on date 25. इसका रिवर्स इफेक्ट देंगे और हम लेकर जाएंगे इसको पेमेंट साइड में एंड व्हाट वी आर सपोज टू राइट बाय पार्थ अकाउंट। डेट विल बी 25 बाय पार्थ अकाउंट। इन द कॉलम ऑफ बैंक हमें कितना शो करना है 4500। ओके डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू? ये पार्थ इसके लिए अपन ने यहाँ पे मेंशन किया जस्ट दिस इंडिकेट्स कि अभी भी हम 4500 पार्थ से मांग रहे हैं जो हमें पार्थ फ्यूचर में जाके देगा जस्ट बिकॉज इसका चेक क्या हो गया है डिसऑनर हो गया है, हमने उसका रिवर्स एंट्री कर दिया। डेट 28 check of 6050 is issued to Bansri towards an old debt. Total debt was 6100. हमने चेक इशू किया है, that means we are doing the payments to Bansri. Okay, कितना हमें देना था 6100 इंस्टेड हमने कितने का चेक बनाया 6050। तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। ओके, हम चेक इशू कर रहे हैं, इसके लिए आएगा ऑन पेमेंट साइड डेट 28 by Bansri account. ओके, कॉलम में डिस्काउंट के 50 बिकॉज 6100 हमें पे करना था पर हमने चेक बनाया है 6050 का, तो 50 रुपए आपको डिस्काउंट मिला, हमें वो मानना होगा। ओके, डेट 29 गोपी हैज पेड 2000 by cash in full settlement of debt 2040. गोपी हैज पेड यानी गोपी हमें पे कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। हमें कितना मिलना चाहिए था 2040, बट व्हाट अमाउंट वी हैव रिसीव्ड थ्रू कैश 2000. सो डेट 29 ऑन रिसिप्ट साइड टू गोपी अकाउंट। इन द कॉलम ऑफ डिस्काउंट 40, कैश में कितना हमें मिला है 2000 rupees. Okay, now the last transaction is very important for you people from the examination point of view as well. After keeping cash on hand 5000, remaining amount is deposited into the bank. Now how we are supposed to do this, please concentrate very nicely. हमने क्या बोला है, आफ्टर कीपिंग 5000 कैश ऑन हैंड, यानी 5000 तो हमारे पास बैलेंस होना ही चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5000 है दिस इज क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश। आर यू गेटिंग? वर्ड्स को ध्यान से पढ़ो। आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000, 5000 तो हमें अपने पास रखने ही है, उसके बाद भी जो डिफरेंस बचता है वो हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ओके, सो हाउ वी आर सपोज टू डू, बट ऑब्वियस है आपका ओपनिंग बैलेंस हमेशा रिसिप्ट साइड होता है, क्लोजिंग बैलेंस इट कम्स ऑन दी पेमेंट साइड। अभी हमें क्या करना होगा, पेमेंट साइड में इसका पेमेंट साइड आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अभी आपको 28 डेट जहां कंप्लीट हो रहा है उसके बाद थोड़ा सा स्पेस रख के वी आर डूइंग द मंथ अगस्त, सो इसका एंडिंग डेट क्या होगा 31। हमें क्या करना होगा, यहां पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। इन द कॉलम ऑफ कैश इट इज प्री डिसाइडेड कि हमें 5000 रुपए अपने हाथ में रखने ही हैं। ओके, अभी इसके अलावा जो बैलेंस बचता है दैट वी विल डिपॉजिट इनटू दी बैंक। नाउ आपको रिसिप्ट साइड दैट इज डेबिट साइड का कैश टोटल करना होगा। ये सारा कैश आप टोटल करेंगे, क्या होगा 7000 प्लस 7000
plus 5,000, 1,000, 500, 2,000 plus 2,000. That will come to 24,500. ये 24,500 आपका टोटल हुआ. जो टोटल आपको कहाँ लिखना होगा, ये जो आपने 5,000 लिख लिया है उसके भी नीचे. ओके, सो पूरा मेथड आप अच्छे से समझेंगे और ध्यान भी देंगे. 24,500 इसके इक्विवेलेंट में ही हमें बनाना होगा, पैरेलल इसके आना चाहिए. ओके, नाउ इन द कॉलम ऑफ कैश 24,500. ये तो हम सिंपल करते ही थे. फिर हम क्या करते थे, क्रेडिट साइड के जितना भी ये कैश है वो सारा डिडक्ट कर देते थे. हम क्या करेंगे वापस से, माइनस 6,000, 3,000, 3,500, 1,000, 1,000. ओके, ये जो बैलेंस है उसे भी, ओके, दिस इज आवर बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस है, उसे भी हम माइनस कर देंगे बिकॉज इतना तो हमें हाथ में रखना है. माइनस 5,000. अब कितना बचा आपके पास, 5,000. अब ये जो एक्स्ट्रा का 5,000 है इसको हमें क्या करना है, डिपॉजिट करना है. डिपॉजिट कहां करना है, बैंक में करना है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यू पीपल? बैंक में जब आप डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बिकम्स द रिसीवर एंड कैश गोज आउट. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसका हमें कॉन्ट्रा एंट्री करना है. सो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. डेट लास्ट वाली ही आएगी, डेट 31 बाय बैंक अकाउंट. कॉन्ट्रा लिखेंगे लेजर फोलियो में, डिस्काउंट में डैश और बैंक में डैश. बैंक रिसीव कर रही है, कैश गोज आउट और बैंक यहां पे रिसीव कर रही है, तो डेबिट में क्या करेंगे, बैंक 5,000 रुपीज. ओके, सो यहां पे आप लिखेंगे कॉन्ट्रा, डेट विल बी 31. कितना आएगा आपका यहां पे, टू कैश अकाउंट. ओके, अगर आप प्रोसीजर नहीं समझे हैं कैसे करना है टोटलिंग, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. आपको क्या करना है, सारा ये कैश का टोटल ऑफ रिसिट साइड आपको करना है. 24,500 आएगा. दिस 24,500 यू आर सपोज टू शिफ्ट इट ऑन दी पेमेंट साइड, दैट इज योर क्रेडिट साइड. बाद में आपको सारे ये आपके गिवन जो कैश के कॉलम्स हैं उनमें से आपको डिडक्ट कर देना है. ये बैलेंस आपको पहले ही लिख लेना है, जस्ट बिकॉज ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ इंफॉर्मेशन है कि हमें 5,000 बैलेंस रखना है. फिर आप 1,000 तक डिडक्ट करते करते पहुंचे, फिर आपका बैलेंस आया 10,000. 10,000 में से ये 5,000 आप रख देंगे. उसके बाद वापस से बैलेंस आया 5,000. ये 5,000 आप डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर, इसके लिए कैश गोज आउट एंड बैंक इज द रिसीवर. नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, अभी आप क्या करेंगे, पूरा बैंक का टोटल करेंगे. बैंक का टोटल विल कम टू 21,300. ये 21,300 को यहाँ पे लिखा हमने, सारे ये बैंक के अमाउंट्स को हमने डिडक्ट किया. आपका बैलेंस आया 5,050. ओके, और डिस्काउंट अलाउड इंडिविजुअली होगा, इसको कभी भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है. इट विल कम 840. ओके, एंड यहां पर आएगा ये 50. फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? अभी 31st का जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका नेक्स्ट सितंबर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग 2015 सितंबर 1st टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है आपका बैलेंस. डिस्काउंट में कुछ नहीं, 5,000 कैश का एंड बैंक का 5,050. I hope question number 8 which I have taught you right now is understood by you people. Please repeatedly see the video if you are not getting. Fine students. Now your today's homework is question number 8 which I have taught you right now. Along with that similar type of illustration is there illustration number 6. Practice both these sums in your accounts fair book. Thank you students.